Hello guys, how are you? I hope you all are well. Welcome back to my class, Physics with Tanya Tyagi. In previous class, I will give you my introduction about the physics. What is physics? What is the use of physics in different types of exam like JEE Advanced, NEET, and etc. and other engineering exams. So now from today we start studying. Science. What is science? Basically, it is divided broadly into three parts. First one is biology, second one is chemistry, and third one is physics. If I talk about science, अगर मैं साइंस के बारे में बात करूँ तो from class 6 or 7 we started to study science and we know about that how things get work. Like जब हम छोटे होते हैं बचपन से हम देखते हैं in class of 5th we always study rub a scale from your hairs and he is able to capture the small particles of a paper. अगर किसी स्केल को हमने अपने सूखे वालों से रब करके किसी छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स के ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या करेगी, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. तब हमको ये नहीं पता था, एट दैट टाइम वी डोंट नो व्हाट हैपन इन दिस केस में क्या हुआ. लेकिन एज वी ग्रो दैट वी नो दैट स्केल विल बी चार्ज फ्रॉम आवर हेयर. वो स्केल क्या हुई, हमारे हेयर से चार्ज हो गई and it will be able to capture that particle. So this is science. How we see that sunrise, moonrise, earth revolve at a particular distance. This is also a science. These all categories is all science. Everything all around us, हमारे चारों तरफ जो भी है, connected with the environment, with the connected with the environment, with the bodies is all about science. सब कुछ जुड़ा हुआ है साइंस से. हम खुद किससे जुड़े हुए हैं? साइंस से. ज्ञान, विज्ञान है तभी तो ज्ञान है. अदरवाइज हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होगी. अगर नहीं तो हम भी फिर ऐसे रहेंगे, हमें भी कुछ नहीं पता होगा कि कैसे चीजें काम कर रही है, क्या हो रहा है, लाइट क्यों आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो कर रही है. एज टाइम ग्रो एंड वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़ी क्लास में आते हैं, हम चीजों को सीखना पढ़ना सीख जाते हैं. सो क्या हो गया, बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी. बायोलॉजी. बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी and also a study of plants and एनिमल्स. बायोलॉजी क्या है, हम लोग सभी समझते हैं. बायोलॉजी में हम क्या क्या चीजें कैटेगराइज करते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन की बॉडी कैसे काम करती है, हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम वर्क. हाथ में कौन सा जॉइंट लगा हुआ है, कैसे एल्बो कैसे हिल रही है, ये कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट कौन सा है, बॉल एंड स्पाइक जॉइंट कौन सा है. हमारी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसके बारे में जानना, कैसे प्रोसेस होती है, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सारी कैटेगरीज किस में आती हैं? बायोलॉजी में. नेक्स्ट वन इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द केमिकल and reaction. Chemistry is a study of chemicals and their reaction. अगर हमने केमिस्ट्री नहीं आ रही होती तो वी डोंट नो, हमें पता नहीं लगता व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर. As chemistry grow and scientists research, then we know that chemical formula of water is H2O. When we mix two atoms of hydrogen with one atom of oxygen, it will be form water. That is known as hydrogen dioxide. So we know, and the last is physics. In physics, we study about the all things that we see all around us, like some natural phenomena, lightning, conducting,
how does like in physics we study all the formula like how lightning occurs, बिजली कैसे चमकती है, how earthquake occurs, भूकंप कैसे आता है, how tsunami occurs, how storm occur, ये सारी प्रोसेस कैसे होती है। अगर भूकंप आता है तो उससे ट्रेवल करने वाली वेव्स अर्थ के कौन से पार्ट से निकलती हैं, वोल्केनिक इवेपोरेशन, सारी चीजें किस में आती है, फिजिक्स में। तो लिख देते हैं स्टडी ऑल अबाउट ऑल अराउंड us. It's physics. So this is the basic introduction of science and different part of science. As we study we started study from these different parts from class 9th, biology, chemistry and physics. So then came up to my subject is physics. Before study the physics of class 11, there are several kind of forces that they work on the bodies and particles. अगर हम लोग फिजिक्स की स्टडी करने जा रहे हैं, फिजिक्स में कुछ भी है, ए ह्यूमन, ए स्ट्रक्चर, ए सॉलिड, ए पार्टिकल, वी ऑल कंसिडर दैट पर्टिकुलर मैटर इज एज ए बॉडी। कुछ भी रखा है, सपोज दिस इज स्टोन 1 and this is stone 2. If we analyze anything in between that, so we could not call that stone 1 and stone 2. We use body 1 and body 2. Body 1 and body 2. Understand? You all are better understand. अब अगर देखा जाए फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, वी ऑल नो अबाउट दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस। अगर हम यूनिवर्स में हैं, हर चीज क्या है, दूसरी चीज पे अपना क्या करते हैं, इफेक्ट डालती है, इम्पैक्ट डालती है, फोर्स डालती है। अगर हम सपोज हम किसी फैमिली में रह रहे हैं, हमारे आसपास मम्मी पापा छोटा भाई बहन जो कुछ भी है, सबका क्या है, एक दूसरे पे एक इफेक्ट है। कभी किसी में झगड़ा हो गया, किसी में कुछ हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, तो दोनों तरफ से क्या आ रही है, रिएक्शंस आ रही है, मतलब एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। अब यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, एक दूसरे पे इफेक्ट डालती हैं। सपोज ये स्टोन 1 था और ये स्टोन 2 था, अब ये इतनी डिस्टेंस पे रखे हैं, हमें दिखेगा नहीं, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। हमें दिखेगा नहीं, हमें महसूस नहीं होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे कंटिन्यूअसली एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अगर इनको थोड़ा कोई भी दो बॉडीज ने, सपोज एक पत्थर ये है एंड सेकंड इज दिस, इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल रख दिया, एक के ऊपर एक पैरेलल करके रख दिया, कुछ नहीं करा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा, छुआ नहीं, कुछ नहीं करा। अगर कुछ टाइम बाद देखेंगे, इफ वी वांट टू सी दैट आफ्टर 6 months or 8 months, if we put it down and the first stone, then we will see there will be a crack on both them. हम देखेंगे इन दोनों पे क्या होएगा, एक क्रैक होएगा। देयर विल बी ए क्रैक ऑल्सो इन स्टोन 1 एंड देयर विल बी ए क्रैक ऑल्सो ऑन स्टोन 2. दिस विल बी डिके एंड इट विल बी ऑल्सो डिके। दोनों क्या कर जाएंगे, डिके कर जाएंगे। डिके क्यों कर गए, क्या ये सोचा है कभी ऐसा क्यों हुआ, डिके क्यों करे? हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, ऊपर से कुछ हथौड़ा नहीं मारा, कुछ नहीं करा, फिर भी क्या हुआ, दोनों आपस से डिके हो गए, हट गए थोड़े थोड़े। ऐसा इसलिए हुआ, ये दोनों बहुत बिल्कुल मिला के रखे हुए थे, इनके बीच में कोई गैप नहीं दिया हुआ था। पहली कंडीशन क्या काम करती है इसमें, क्लाइमेट चेंज। अगर सर्दी हुई होगी तो इनमें क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, तो ये दोनों क्या करे होंगे, अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर गए होंगे। अगर गर्मी आई होगी तो इनमें क्या हुआ होगा, एक्सपेंशन। As the temperature high, then body will be start expand. As the temperature low, then body will be start as contraction. बहुत प्रोसेस हुई होंगी। एंड थर्ड वन इज, इन दोनों ने क्या करा होगा, जब दोनों को एक के ऊपर एक करके रखा होगा, दोनों ने एक दूसरे पे एक फोर्स लगाया होगा। एज वी स्टडी, ऐसा क्यों हुआ होगा, एज वी स्टडी इन क्लास 9th, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम कुछ करते हैं तो हमें भी क्या, उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलती है। अभी किसी को थप्पड़ मारो जोर से गाल पे, थप्पड़ वाले को तो चोट लगेगी, लेकिन जो तुम्हारा हैंड होगा वो भी क्या हो जाएगा,
रेड हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स तुमने उसको मारने में लगाया उतना ही फोर्स उसके फेस से तुम्हारे हैंड पे लगा, दैट्स व्हाई योर हैंड विल बी रेड। सो यहां से फोर्स लगा और यहां से लगा, ये भी क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ, दोनों की बॉडी क्या कर गई, डिके कर गई, ये भी टूट गई और ये भी टूट गई। अब ये कैसे पता लगेगा कौन सी ज्यादा टूटी या कौन सी कम टूटी? जिसका वेट ज्यादा होगा, जो भारी होगी, वही वाली क्या होगी, जो बॉडी कैपेबल होगी ज्यादा फोर्स अप्लाई करने में, वो बॉडी क्या होगी, कम टूटी हुई होगी। होता है ना, एक बहुत मोटा सा इंसान है, पतला सा इंसान है, अगर मोटा वाला धक्का मारेगा तो पतला वाला दूर जाके गिरेगा, अगर पतला वाला धक्का मारेगा तो मोटा वाला ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका वेट इतना है, वो उससे जल्दी से हिल नहीं पाएगा। जो वाला भी स्टोन इनमें से हैवी होगा और जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जिसको ज्यादा चाहिए होगा, हाँ वो नहीं रह पा रहा होगा, उसको ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, तो उसने क्या करा होगा, इस पे ज्यादा फोर्स लगाया होगा कम स्पेस और हल्के वाले स्टोन पे, इसलिए वो स्टोन ज्यादा डिके हुआ होगा, जो क्या होगा, स्मॉलर होगा, जो फोर्स अप्लाई फोर्स जिसका क्या होगा, कम होगा, और जिसने स्पेस भी क्या ऑक्यूपाई करी होगी, कम ऑक्यूपाई करी होगी। ये तीनों कंडीशन होती हैं। समझ में आया कैसे काम करती है चीजें? यूनिवर्स में कुछ भी है, ग्रेविटी है, अगर सेम नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ उस पे, तो वो सेम भी ऊपर रहना चाह रहा होगा, वो नीचे नहीं आना चाह रहा होगा। तभी तो ऐसा होता है ना कि वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन और टाइम के बाद आता है। अगर वो अर्थ पे अपना फोर्स नहीं लगाता तो वो जब पेड़ पे आया था वो तुरंत नीचे आ जाता, हर चीजें नीचे गिरी हुई होती। So first and most important force is gravitation. Gravitational force मोस्ट पावरफुल, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा, जिसका मतलब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, न्यूटन के सर पे सेव करा और उसने क्या कर दिया, पूरी ग्रेविटी दे दी। उसने ये पता लगा दिया अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटी है, और चीजें कैसे काम करती है, इसलिए नीचे आके गिरती हैं। वो फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें दिखता नहीं है, कुछ महसूस नहीं होता, फिर भी अगर हम कुछ भी ऊपर उछालेंगे नीचे ही आना है उसको, ऐसे तो नहीं है कि ऊपर चला जाएगा। सपोज इफ आई दिस इज ए केस ऑफ माई स्पेक्स, अगर मैं इसको ऊपर उछालूंगी तो ये भी क्या होगा, नीचे आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ऐसे तो नहीं है ना मैंने इसको ऊपर फेंका और ये ऊपर ही रुक गया, ये यहाँ फेंका यहीं पे रुक गया, अगर इसको ऊपर भेजूंगी तो ये नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि अर्थ के अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर है, वो चीजों को अपनी तरफ क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। अनटिल और अनलेस, अगर हम आगे जाएंगे लेमन की फिजिक्स में तो एक वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी क्या होती है, उसमें किसी भी, अगर हमें किसी भी चीज को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर पहुंचाना होता है, हम उसको इतनी स्पीड देते हैं, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से उछालेंगे कि वो अर्थ के ग्रेविटी फील्ड को क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। उसके बाद उस पे अर्थ की ग्रेविटी काम नहीं करेगी। एज वी सा इन मैनी वीडियोस, जैसे मून पे लोग जाते हैं, वहां क्या होती है, ग्रेविटी नहीं होती, चीजें क्या करती हैं, वहां पे सब उड़ती हैं। अभी अर्थ पे ऐसे क्यों है, चीजें जमीन से जुड़ी हुई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी नहीं होगी ना तो हम लोग भी ऐसे हवा में उड़ने लग जाएंगे, जैसे कैसे उड़ते हैं मून पे। यही फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसका एक और अलग से एग्जाम्पल देके समझाऊं, अगर यही एग्जांपल देखिए, स्टोन 1 एंड स्टोन 2 दोनों रखे हैं, दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई बाहर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सोचो वो फोर्स कौन सा होएगा, जब दो चीजें आपस में रखी हैं, उनके आसपास कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, बीच में से कुछ क्रॉस नहीं हो रहा, आसपास से कुछ नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, कोई धक्का नहीं मार रहा, पुल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है, वो जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही है वही क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर देखें अर्थ के अंदर अगर इतनी ज्यादा ग्रेविटी है, वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, तो
सोलर सिस्टम में ऐसा क्यों होता है कि अर्थ अपनी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे घूमती रहती है, वो वहां पे जो उसके प्लैनेट्स हैं या सन है चारों तरफ है, उनको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचती, या वो दूसरी की तरफ सन भी एकदम ऐसे आ जाना चाहिए, उनके बीच में डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस क्यों होती है, सोच रहा। मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। वन मिनट। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स हर कोई जानता है, बचपन से सब बहुत अच्छे से मैग्नेट के साथ खेलते हैं। मैग्नेट को लाते हैं, आयरन के पीस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, मैग्नेट क्या कर लेती है, उसको अपनी तरफ एकदम से खींच लेती है। मैग्नेट है, एक दूसरी छोटी बड़ी मैग्नेट है, आपस में उनसे खेलते हैं, क्या कर लेगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, उसको अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, वो अपने सामने वाले पे क्या करेगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फोर्स। सपोज दिस इज ए मैग्नेट, मैग्नेट 1। अगर ये मैग्नेट यहाँ पे रखी है, किसी पर्टिकुलर जगह पे रखी है, इसका क्या है, अपना एक जोन है, अपना एक एरिया है, यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ पे इसकी पावर बहुत ज्यादा है। होता है ना, जैसे अगर हम अपने जोन में हैं, अपने एरिया में हैं, अपने घर पे हैं, तो हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, वहां हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। सेम इन केस ऑफ मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट यहाँ पे रखी है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसका फोर्स जो यहाँ पे लगेगा ना, वो सबसे ज्यादा लगेगा। यहाँ पे रखिए, इसने अपने चारों तरफ क्या किया, एक जोन क्रिएट हो जाता है, जोन बोलो या फील्ड बोलो, एक फील्ड क्रिएट कर ले। दिस फील्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कोई भी आयरन पीस लाते हैं, कोई दूसरी मैग्नेट लाते हैं, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लाए, अभी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हम इसको रिवॉल्व करा रहे हैं, मैग्नेट फोर्स अप्लाई तो जरूर कर रही होगी, इधर को इधर को इधर को इधर को, ये फोर्स अप्लाई कर रही होगी कि क्या करे, ये इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रही? जो इस फोर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है, और बाहर क्या है, लो है। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें, मतलब ऐसी मैग्नेट अगर यहाँ है, कोई आयरन पीस बहुत घर में बहुत दूर पड़ा है, ऐसा तो नहीं है सारे आयरन आके मैग्नेट पे चिपक गए, ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होता है, आयरन कब आएगा मैग्नेट पे, जब हम उसको उसके थोड़ा आसपास लाएंगे, इतनी डिस्टेंस पे लाएंगे कि वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, तभी तो अट्रैक्ट होगा ना। अब अगर चारों तरफ घुमा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहा, आराम से रिवॉल्व कर पा रहे हैं हम। अब जैसे हमने इस लाइन पर लाए, रिवॉल्व कराना शुरू करा, ये कोई सी भी डायरेक्शन से एकदम क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। इसलिए अट्रैक्ट करेगी क्योंकि ये क्या आ गया, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। that force with which one magnet is applied on another magnet or a iron piece is called as magnetic force. And a field that a magnet generated surrounded by that is known as magnetic field. जो एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। एंड जब जहां पे मैग्नेट रखी है, उसके चारों तरफ का पर्टिकुलर एरिया, जिसमें आने के बाद वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है एकदम से, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज द टू कंडीशन। अगर हम फर्दर स्टडीज के लिए जाएंगे आगे 11th के ही चैप्टर में, ये पूरा एक चैप्टर है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड क्या है और सब कुछ क्या है। देखो नेक्स्ट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो हम कोई रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट ले रहे हैं, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ले लिया। अगर हमने इसको बीच में से
कट कर दिया। कट करने के बाद क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगी, पहला हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ पे भी क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पे भी दो पोल जनरेट हो जाएंगे और यहाँ पे भी दो पोल जनरेट हो जाएंगे। अगर हम फर्दर फिर इसको कट करेंगे, सेम नॉर्थ पोल और साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जितने पीसेस में हम कट करते रहेंगे उतने ही नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होते रहेंगे। अगर आईआईटी के लिए जाते हैं, जेईई मेंस के लिए जाएंगे, उसमें एक बहुत अच्छा 12th की फिजिक्स में भी है और उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक होता है एक, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मैग्नेट। मतलब अगर ये मैग्नेट रखी है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कॉपर की वायरिंग कर दी, चारों तरफ कनेक्ट कर दिया स्विच से, स्विच से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, स्विच ऑन कर दिया। हमने ये देखना होता है कि अगर हम मैग्नेट को हम ऐसी जगह पे रखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, या हम ये देखना चाहें कि मैग्नेट खुद में बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक फोर्स उसका बहुत हाई है, लेकिन अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये इसका मैग्नेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराएं। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का मतलब होता है बाहर से कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देना। लाइक कॉपर की वायरिंग करी, कॉपर की वायरिंग क्यों करी, बिकॉज घरों में हम क्या करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। कॉपर क्यों यूज करते हैं, कॉपर एक अच्छा गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है, कंडक्टर होने का मतलब क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, करंट को बहुत इजीली फ्लो करा देगा। टू टाइप्स ऑफ थिंग्स होती है ना, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, विच वन अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, वो क्या होते हैं, कंडक्टर, एंड विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट और और हीट इज नॉन एज द इंसुलेटर। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है, वही क्या होता है, करंट। जितना करंट और कुछ नहीं होता, एक पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहे हैं वही क्या होता है, करंट। स्विच ऑन कर दिया, यहाँ से वायरिंग थी, करंट जनरेट हुआ, ऐसे ही देखते हैं ना, करंट करंट जनरेट हुआ, करंट जनरेट हुआ जुजु ऐसे करके। अभी क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल रखे हैं, मैग्नेट अपना फोर्स अप्लाई कर रही होगी, बचना चाह रही होगी कि मेरे पे इसका इफेक्ट ना आए, लेकिन जो बाहर से वायरिंग है वो कॉपर की है, इफेक्ट तो 200% आएगा ही आएगा। अब इफेक्ट कैसे आएगा, अगर इस डायरेक्शन में रखिए तो ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है ये अपनी पोजीशन से थोड़ा हट जाएगी। अगर मैंने ये बिल्कुल सीधी करके रखी है तो अभी कैसे हो जाएगी, साउथ नॉर्थ, इस कंडीशन में हो जाएगी। डिफ्लेक्ट होने का मतलब समझते हैं, अपनी पोजीशन से बिल्कुल हट जाना। सपोज अभी मैंने केस ऐसे रखा है, मैंने कुछ फोर्स लाके चेंज किया, ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब मैंने इसको ऐसे रखा है, फिर ऐसे कर दूं, ये भी क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अपनी मेन पोजीशन से छोड़ के, रेस्ट वाली पोजीशन से छोड़ के इधर उधर हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्ट हो जाना। समझ आया। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्लास 8th और 9th, इट मे बी फ्रॉम 9th और 8th, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमने ये देखना होता है करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, हमें ये पता लगाना होता है करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो निडल होती है, कंपास करके ड्रॉ करके कंपास के निडल लगा देते हैं। अगर ये निडल इस पोजीशन में रखी थी, अगर अपनी मेन पोजीशन से थोड़ी भी हटके इधर और इधर गई, हटी मतलब हटके इधर और इधर गई, मतलब क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, तो हम श्योर हो जाते हैं सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अगर नहीं होती तो अदरवाइज करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। दैट इज ऑल क्लियर। सो देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। टू टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ाए हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज मैग्नेटिक फोर्स, एंड नाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।